Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Mayur Sharma and a CA aspirant, a student at St. Xavier's College, Kolkata, and I gave my 12 boards examination this year. And this video is all about the subject English Literature of ISC, of course. I'll give tips, tricks, and advices. And mind it, when I say tips, tricks, and advices, all these things are provided to me by my teachers. I did not take any tuition in 12th grade for any other subject except accounts. So I think that everything that I will say is from my school teacher itself. So to be honest, literature has been one of my better, relatively good subject because of the fact that I love literature. Moreover, Macbeth has been my favorite play because I have once read it in sixth grade. So I was relatively like मेरे को पता था what is going to happen in Macbeth, and to be honest it's more interesting than any other play अभी तक जितना मैंने शेक्सपियर के बारे में I have got to know. And moreover it's one of the shortest play written by William Shakespeare, so like relatively बहुत छोटा है and relatively advantageous है हम लोग के लिए. So what I am telling you guys is Macbeth का बहुत simple सा फंडा रखना. Just read the book, or moreover I did not have any workbook for literature. Like I did not purchase any other book except the छोटा छोटा जो books देते हैं वो लोग main वही था. ठीक है. और मैकबेथ के लिए I would say that simply read the subject. And moreover literature में क्या है ना, they are not expecting the summary from you guys. For from 12th graders they are expecting more than just summaries. ठीक है. Summary is something जो 10th grader ish हो गया, but we are expected to analyze things. Okay. तो annotate करो each and every line of Macbeth, और एनी अदर रैप्सडी में भी यही हो गया. ठीक है. और स्टोरीज में भी हो गया. एवरीथिंग, एवरी लाइन हैज अ सिग्निफिकेंस, और हर उस सिग्निफिकेंस को यू जस्ट ट्राई टू रिमेंबर कि क्या है. मोरोवर वी हैव द ग्रेटेस्ट टूल्स लाइक चैट जीपीटी. मैं तो क्या करता था, लाइक आई वुड गिव अ पेज टू चैट जीपीटी कि ये पेज है, अब नाउ एनोटेट इट विथ मी. तो इट वुड बी वेरी मच हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी. मोरोवर मैं कुछ ऐसा भी निकाल सकता था विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. आई हैड दिस थिंग कि मेरे को मतलब I would not write a normal answer for literature. ठीक है. कुछ ऐसा आंसर which was out of the box. When a teacher read something which is out of the box, कुछ different है, like it's not monotonous, like हर पेपर चेक कर रहा है एक examiner and he sees a different answer, a relatively more interesting answer, of course marks बढ़ेगा. So that is quite advantageous for you guys. Moreover मैं क्या करता था फॉर सब्जेक्ट्स लाइक मैकबेथ एंड रैप्सडी, ये सब क्या होता था कि दीज आर लाइक अवेलेबल बहुत सारी जगह. तो व्हाट आई वुड यूज टू डू इज लाइक गो ऑन पिंटरेस्ट, एंड उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सीन्स का एनोटेशन लिखा रहता था. एंड दोज एनोटेशंस वे सो गुड, लाइक रिलेटिवली सो गुड, एंड द वे द फॉर्म दे हैव रिटन इट. मोरोवर लाइक ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखे रहते हैं which when you will use in your answers, marks will automatically go up. So I would recommend you Pinterest में जाओ, there are lines के annotation, ठीक है, there are scenes के annotation. Read Macbeth. और to be honest बहुत टाइम है. लिटरेचर तो मैं प्रॉपरली एकदम एग्जाम के पहले ही करता था. ठीक है. सो आई वुड से कि रीड एवरी लाइन, एनोटेट एवरी लाइन, हो सके तो कॉपी में लिख लो. ठीक है. बिकॉज आई हैड अ कॉपी जिसमें हर एक सीन का एनोटेशन और वो सब लिखा रहता था. I would have given you all the copies of these things, but unfortunately I don't know where all those notes are. If I find them like later, I would definitely give you guys the notes, but अभी के लिए तो नहीं मिल रहा है. ठीक है. So I would just recommend you कि आप हर एक लाइन को एनालाइज करके लिखो और आंसर भी उस हिसाब से लिखना. ठीक है. नाउ व्हाट इज द मेन थिंग अबाउट आंसर्स. ठीक है. यहाँ 2 मार्क्स का क्वेश्चंस नहीं आता, सो यू नॉट राइट अ डायरेक्ट आंसर. यहाँ पर 5 और 10 मार्क्स का आंसर आता है. ठीक है. सो they are expecting something from a 12th grader, right? Suppose एक 5 मार्क्स का आंसर है, you cannot just automatically jump into the answer, right? You have to write an introduction, छोटा सा, भले ही 2 लाइन का है, for a 5 मार्क्स क्वेश्चन छोटा सा एक 2 लाइन का इंट्रोडक्शन about the chapter जिसका आंसर you are writing. ठीक है. Write about the answer then. और there is one thing, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एटलीस्ट 4 पॉइंट्स तो रहेगा ही उस क्वेश्चन में. जो 4 पॉइंट के आंसर रहेंगे वो रहेगा ही.
ठीक है, एंड द एग्जामिनर विल चेक फ्रॉम दैट दोज पॉइंट्स ओनली, ठीक है, जो की पॉइंट्स रहेंगे. Moreover, what I would like to recommend you is कुछ कुछ terms होता है which you guys have to memorize, ठीक है, और like try कि आप आंसर्स में मैकबेथ के कुछ कुछ लाइंस डाल सको. लाइक फॉर एग्जांपल इन माय केस कुछ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग लाइंस है जो मैं हर जगह डाल सकता हूँ, हर आंसर्स में डाल सकते हैं, ठीक है. कुछ कुछ लाइन, सपोज लेडी मैकबेथ का कोई लाइन हो गया, ठीक है, मैकबेथ का कोई लाइन हो गया, ठीक है, यू वो लाइन आप हर आंसर में लिख सकते हो. सो जस्ट रोट लर्न दोज लाइन्स, और अगर आप ये लिखते हो ना अपने आंसर में, योर आंसर ऑटोमेटिकली लाइक गेट्स हाईलाइट्स, ठीक है, कि इट हाईलाइट्स द फैक्ट दैट यू हैव स्टडीड, ठीक है. मोरोवर इंग्लिश का क्या रहता है ना, द टीचर्स लुक फॉर स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं एक्चुअली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नेग्लेक्ट दिस सब्जेक्ट, और टीचर्स ऑलवेज गेट्स पिस्ड ऑफ कि लाइक इंग्लिश तो कोई पढ़ता नहीं है, सो लाइक दे ट्राई टू गिव वेरी लेस मार्क्स इन इंग्लिश. सो आई वुड रिकमेंड यू अच्छे से पढ़ना फॉर इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लैंग्वेज. मोरोवर इंग्लिश का जो मार्क्स है वो एवरेज हो जाएगा. लैंग्वेज में यू कैन मेक मिस्टेक्स, ठीक है, जो ग्रामर पोर्शन है का इट कैन बी टफ फॉर सम पीपल. सो मेक श्योर आप लिटरेचर में मार्क्स नहीं लूज कर रहे हो, बिकॉज लिटरेचर हैज टू बी योर प्लस पॉइंट. और मोरओवर इंग्लिश कंपलसरी रहता है फॉर आईएससी स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू टेक इट इन योर हैंड, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट बुक विच इज रैप्सडी, पोएम वाला. पोएम वाज अ स्ट्रॉन्ग पोर्शन फॉर मी, ठीक है, क्योंकि पोएम्स छोटे रहते हैं, ठीक है, और पोएम्स जब छोटे रहते हैं, मतलब ऑफ कोर्स देयर आर पोएम्स जो बड़े भी हैं, बहुत 3-3 पेज के पोएम्स है, बट इट्स रिलेटिवली स्मॉलर देन स्टोरीज, राइट. स्टोरीज तो 15-20 पेज कितने कितने बड़े, इंडिगो सपोज कितना बड़ा है, लाइक आई नो बहुत बहुत बड़ा है, मैं तो रीड भी नहीं कर पाता था एक बार एक सिटिंग में वो सारा, ठीक है. सो फॉर पोएम्स आई वुड रिकमेंड यू गाइस कि आप लोग हर एक लाइन को एनोटेट करो, वापस वही चीज, सेम चीज. पोएट के बारे में जानो, नो अबाउट द पोएट, क्योंकि आप जब आंसर लिखोगे ना पोएम के बारे में 10 मार्क्स का, एटलीस्ट 2 लाइन पोएट के बारे में रहना चाहिए, एटलीस्ट 2 लाइन पोएम के बारे में रहना चाहिए, एंड देन योर आंसर हैज टू बी देयर. एंड मेक श्योर यू राइट अ प्रॉपर कंक्लूजन. यू डू नॉट हैव टू राइट अ हेडिंग ऐसे की इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन, नहीं, ऐसा नहीं रहना, ऐसा नहीं रहता है. व्हाट यू हैव टू डू इज राइट कि एक छोटा सा लाइन लिखो अबाउट द पोएम, अबाउट द पोएट, ठीक है, उसके बाद मेन आंसर, उसके बाद अपना एक छोटा सा कंक्लूजन, ठीक है. 10 मार्क्स के आंसर में यू कैन लीव पैराग्राफ्स, ठीक है, मैं अपना आंसर्स बड़ा ही लिखता था, ठीक है. एंड माई टीचर टोल्ड मी देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इफ यू राइट अ लॉन्ग आंसर फॉर 5 मार्कर्स ऑल्सो. सो यू कैन एक्चुअली राइट बड़े आंसर. लाइक स्कूल में तो क्या होता था कि लाइक मार्क्स काटे जाते थे इफ यू राइट मोर देन 150 वर्ड्स, या फिर जितना लिमिटेड प्रिस्क्राइब लिमिट है. सो स्कूल में तो काटे जाते हैं बट बोर्ड्स नहीं काटता है, ऐसा मेरे टीचर ने बोला था. सो आई रोट वेरी बड़ा बड़ा आंसर्स, बिकॉज लाइक आई बिलीव अगर आप बड़ा आंसर लिख रहे हो ना तो उसमें नेगेटिव प्लस पॉइंट, नेगेटिव काटने का चांसेस कम हो जाता है, कि लाइक और पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं तो और पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है. बट मेक श्योर ऐसा ना हो कि आप ज्यादा लिख रहे हो और कुछ भी लिख रहे हो, क्योंकि अगर आप कुछ भी लिख रहे हो ना तो आपका एग्जामिनर का माथा खराब हो सकता है, एंड दे विल ऑटोमेटिकली लाइक डिडक्ट योर मार्क्स, ठीक है. सो मेक श्योर यू राइट व्हाट यू राइट मेक्स सेंस, ठीक है. रैप्सडी ये हो गया, ठीक है. मेक श्योर आप रैप्सडी का तो हर कुछ कर लो, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होता है, राइट. तो 4 क्वेश्चन आई गेस, एक पोएम, एक स्टोरी, और एक मैकबेथ प्ले, और एक तो कोई भी एक्स्ट्रा. सो जो एक कोई भी एक्स्ट्रा रहता है ना, मैं पोएम ही अटेम्प्ट करता हूँ, बिकॉज पोएम छोटा रहता है तो इट गेट्स इजियर. बट लाइक बोर्ड्स में मैं मैकबेथ किया था बिकॉज मैकबेथ वाज माय प्लस पॉइंट. सो मेक श्योर आप यू नो व्हाट योर प्लस पॉइंट इज, बिकॉज ऑफ कोर्स आई कैन नॉट नो कि आपको पर्सनली कि आपको स्टोरी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, कि आपको प्ले ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, कि आपको पोएम ज्यादा छोटा और ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है. आई डोंट नो, राइट. सो यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू नो कि आपके लिए क्या इजी है, आप क्या लिख पा रहे हो अच्छे से. आई वुड सजेस्ट मैकबेथ अटेम्प्ट करना, क्योंकि पिंटरेस्ट में आंसर्स अच्छे हैं, चैट जीपीटी में आंसर्स अच्छे हैं. वन थिंग मोर, मैं आंसर जब पूछता था ना चैट जीपीटी से, या फिर सपोज चैट जीपीटी को मैं बोला एनालाइज करने, I would write make it aesthetically pleasing, क्योंकि I would not write a bold dumb सा आंसर, ऐसे कुछ भी नहीं लिख के आना है. I want my answer जो ज्यादा अच्छे से दिखे. So like मैं ChatGPT को बोला था कि like make it aesthetically pleasing so that there are some words जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है. लेडी मैकबेथ का तो कैरेक्टर के लिए आई रोट लर्न एक चीज पॉइंट था, जो आई एम नॉट टेलिंग यू कि आपको हर एक चीज रटना है, दैट्स ए कंप्लीटली बेसलेस थिंग, स्पेशली फॉर लिटरेचर, जबकि देर आर अदर सब्जेक्ट लाइक कॉमर्स और इकोनॉमिक्स और लाइक बायोलॉजी, ऑफ कोर्स देर आर अदर सब्जेक्ट्स.
सो मेक श्योर कि आप कम रटो, ठीक है, बट मेक श्योर कुछ कुछ कीवर्ड्स आपको याद रहे ताकि आप अपने से बना के लिख लो. एंड ऑफ कोर्स वी आर ICSE एंड ISC किड्स, वी नो एटलीस्ट हाउ टू राइट आवर आंसर्स, ठीक है. नाउ कमिंग टू स्टोरीज, स्टोरीज आर वेरी बिग, बहुत लेंदी था, एंड दिस इज माई नेगेटिव पॉइंट. आई कैन नॉट सिट फॉर लॉन्ग आवर्स, ठीक है, ऐसे पढ़ नहीं सकता मैं स्टोरीज को लॉन्ग आवर्स के लिए. सो लाइक बहुत इशू हो जाता था. तो बट स्टिल पढ़ना तो पड़ेगा ही. सो मेक श्योर यू रीड स्टोरीज अच्छे से, ठीक है. स्टोरीज के लिए आई वुड से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे स्टोरीज के लिए, बिकॉज स्टोरीज ऑलरेडी इतना बड़ा है, हर एक पॉइंट के लिए आपको आंसर लिखना पड़ेगा. एक चीज बहुत ज्यादा लाइक अनोइंग था, दैट वी हैव टू लर्न अ फ्यू पॉइंट्स फ्रॉम आवर स्टोरीज, ठीक है. दैट इज वेरी 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 दैट हैड पिस्ड मी ऑफ सो मच, क्योंकि लाइक एग्जाम में हम लोग का बोर्ड में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि लाइक आपको टाइम बेसिस पे लिखना है कि इस टाइम पे क्या हो रहा था इस जगह पर, इस घर में. लाइक देयर इज अ स्टोरी अबाउट अ हाउस जो कि आपका डिस्टोपियन वर्ल्ड के बारे में था वो. तो दैट इज लाइक क्वाइट अनोइंग. तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप जो कीवर्ड्स है वो लर्न करो, ठीक है. डो नॉट नेग्लेक्ट कि ये चीज नहीं आएगा, क्योंकि आया था मेरे टाइम में. मेरे को यही लगा था कि काउंसिल ऐसा क्वेश्चन तो देगा नहीं जिसमें मेरे को रटना पड़ेगा, बट आ गया. सो यू हैव टू राइट इट राइट. नाउ आई वुड रिकमेंड यू गाइस कि आप समरी चैट जीपीटी से या जेमिनाई से अच्छे से लेना, एनालिसिस अच्छे से लेना, ठीक है. डू नॉट जस्ट रिलाई ऑन समरी, समरी आपका इतना हेल्प नहीं करेगा जितना एनालिसिस करेगा. सो मेक श्योर आप एनालिसिस बोलो एंड चैट जीपीटी को बोलो, गिव मी एन एनालिसिस व्हिच इज एस्थेटिकली प्लीजिंग दैट आई कैन राइट इन माय आंसर पेपर व्हिच विल हेल्प मी स्कोर फुल मार्क्स. ऐसे करके कुछ भी प्रॉम्प्ट दो अच्छा सा एंड इट विल गिव यू राइट. मेक श्योर यू यूज AI अच्छे से, ठीक है. चैट जीपीटी, जेमिनाई, वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ. नाउ लिटरेचर के लिए मैं कुछ रिकमेंड करूंगा. मेक श्योर आप जो मेन पॉइंट्स लिख रहे हो, ऐसे पॉइंट्स जो कि लाइक आपको आप 100% श्योर हो वो प्रॉपरली राइट है, आप उसको अंडरलाइन कर रहे हो, ठीक है. क्योंकि आप जो इतना बड़ा आंसर रहता है ना, मे बी योर एग्जामिनर इज लाइक अ बिट lethargic, he might not want to check the whole paper. वो बस देख रहा है ऊपर ऊपर से, ठीक है. और अगर उसको तुरंत हाईलाइट मिल जा रहा है कि ये आंसर्स का पॉइंट है, he will give you full marks automatically, he will give you full marks, कुछ रोक नहीं सकता, ठीक है. सो मेक श्योर आप अंडरलाइन कर रहे हो ऐसे पॉइंट्स. मेक श्योर आपका हैंड राइटिंग क्लियर है, बिकॉज लिटरेचर में it matters. When an English teacher checks your answer, he or she is expecting something from you guys, ठीक है. सो मेक श्योर हैंड राइटिंग इज गुड, योर अंडरलाइनिंग स्टफ्स, ठीक है. मेक श्योर यू नो द स्टफ. मेक श्योर आप बिना पढ़े नहीं चल जा रहे हो, आप सिर्फ समरी पढ़ के नहीं चल जा रहे हो. एंड आई नो दिस हैपेंस, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था. मैं प्री बोर्ड्स में भी समरी पढ़ पढ़ के जा रहा था, एंड दैट इज अ वेरी बैड थिंग, ठीक है. एटलीस्ट एक बार रीडिंग फुल ले लेना, ठीक है. मेक श्योर आप एनालिसिस अच्छे से कर लेना, मेक श्योर आप प्रॉपरली कर लेना, बिकॉज लिटरेचर हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आप लोग के लिए, और ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करो, क्योंकि लिटरेचर is relatively easier. So make sure you score more in subjects which is relatively easier. और ऐसे भी English तो है ही compulsory subject, so you have to score good in English. So that's it for today's video, and I hope it was quite helpful for you guys. So yeah, let's meet you in the next video. तब तक के लिए bye.